Okay, in last lecture we discussed about the various types of stresses like uniaxial stresses, so then the biaxial stresses are 2D stresses, then the hydrostatic compression are 3D stresses. So we can say that this is also compressive stresses are also uniaxial stresses because they are applied along single axis, let's say x-axis, and then this container is experiencing a two-dimensional stresses because of the pressure inside it. So these two-dimensional stresses are applied in two axes, so that's why they are called biaxial stresses, or they can also be called 2D stresses, two-dimensional stresses. Here hydrostatic compression is an example of 3D stresses in which the stresses are applied from all three dimensions. Okay, so then we can say there are various types of stresses. For example, here tensile stress is applied to this bar, and then it has elongated along the axis of stress which is applied on the body. And here there are the compressive stress is applied, and then this cylinder is converted into a smaller dimension along the length. But you can notice when the length is increased, then the diameter is decreased for the particular case, and then if the length is decreased, then the diameter is increased, so as to preserve the overall volume of the material and continuity within a material. Because if the length is increased, then the length is increased at the expense of the diameter, and if the diameter is increased, that is increased at the expense of the length. Okay, so ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस की एग्जांपल है, कंप्रेसिव स्ट्रेस की है. देन देयर shear stresses क्या होते हैं कि let's say there is a cube or there is any element in which this is the surface area, and the stress is applied in this direction parallel to the surface. Here the stress is applied perpendicular to the surface which is being considered. यहाँ पे compressive stress इस direction में होगा, tensile इस direction में होगा, तो ये एरिया ये है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर है. यहाँ पे जो है सरफेस एरिया के पैरेलल स्ट्रेस अप्लाई होता है, ठीक है. तो ये डिफॉर्मेशन है, दैट इज रिकॉर्डेड एज एन एंगल, सो दिस कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है. और इस तरह एक अगर कोई बार है, इसको अगर नीचे पार्ट फिक्स कर दें, ऊपर से ट्विस्ट करें, देन दिस इज कॉल्ड torsional deformation or torsional stress which are being applied on this in this particular case. ठीक है. So these are different types of stresses which you should know about. Further हम इसे mathematically देख सकते हैं. So what is stress? Stress is force per unit area. A naught as in original area. ठीक है. Let's say ये एक sample है, cylindrical sample है, यहाँ पे इसे grip किया हुआ है और यहाँ से हम इसे deform कर रहे हैं. So here see if the stress is applied and this then the force which is applied on the sample is shown here. It will be placed as an input here, and then this original area, the area which was at the time of the start of the test will be considered here. So let's say this radius was, like it is mentioned here, 0.505 inch. So that will be fixed here. Then the force which is applied will change over time, and that force because of that change in force, the stress will increase. Because in the tensile test, as I mentioned before, this sample will be elongated in this direction, and force is applied along this direction. So as the force starts to increase, this force starts to increase, then this value will increase, the stress value increase, because the area is considered common, is considered constant here. Okay, so this type of stress is called engineering stress. What is stress? Stress is force per unit area. Engineering stress means force is going to change but the area will stay constant. Engineering strain is equal to change in length per unit original length. So here the term engineering is important because there are two types of stresses which we will discuss in this chapter. One is true stress and strain, and the one is engineering stress and strain. In engineering stress and strain, for example, in engineering stress, the area is constant. This area is the starting area. I mean, when the experiment is started, जब experiment start करते हैं उस टाइम पे जो area measure करते हैं, that area will be considered fixed.
और इसमें फोर्स चेंज होगी, इसी वजह से स्ट्रेस भी चेंज होगा। तो इस तरह जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इस तरह इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है वो क्या होगी, जिस तरह स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ एज इन इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, ठीक है। here I is the instantaneous length minus L0 is the original length, ठीक है। instantaneous length as in जो न्यू सैम्पल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा the length of this sample will increase at any particular instance the length of the sample is Li, I is the for the instantaneous, ठीक है। लेट्स से सैम्पल पर स्ट्रेस अप्लाई किया, इसकी लेंथ बढ़ती गई एंड देन फाइनली इट विल ब्रेक, ठीक है। सो जो फाइनल लेंथ होगी माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ये भी कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ओके। बट वी नो जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लेंथ चेंज होती है, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ अगर हम आगे देखेंगे ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के केस में चेंज आ रहा है लेंथ में, वो भी हम स्ट्रेन के केस में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, वंस अगेन ओरिजिनल लेंथ या स्टार्टिंग लेंथ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। चेंज इन लेंथ जो है वो ओवरऑल चेंज इन लेंथ क्या होगा कि जिस तरह स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, इससे चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ओवर टाइम क्या होगा कि लेंथ सैंपल की बढ़ती जाएगी, इस वजह से स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। हम आगे एक टेस्ट के एग्जांपल भी देखेंगे, ओके। सो शेयर स्ट्रेस जिस तरह हमने डिस्कस किया था, इस क्या होता है कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं लेकिन स्ट्रेस इज अप्लाइड अलोंग द एरिया, जिस तरह एक एग्जांपल भी यहाँ पे कि लेट्स से हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया असूम करते हैं, वो किसी भी ऑफ कोर्स एरिया किसी भी स्लॉन्टेड एंगल पे भी असूम किया जा सकता है। तो उस डायरेक्शन के अलोंग जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, उस एरिया के पैरेलल स्ट्रेस की वैल्यू एरिया के पैरेलल होगी, तो उससे जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। इसमें वंस अगेन एरिया जो होगा वो कांस्टेंट लेंगे। शेयर स्ट्रेन क्या होगा, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, लेट से फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक लेट से एक एलिमेंट था वो यहाँ तक डिफॉर्म हुआ है, तो इसमें जो एंगल में चेंज आया है, ठीक है, एंगल में चेंज कर लें, यहाँ से यहाँ तक एक्स में चेंज कर लें, डेल्टा एक्स और वाई जो है दैट इज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन इन स्ट्रेन में यही चीज़ है कि द चेंज इन डायमेंशन और इट शोज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि ये डायमेंशन में चेंज है, ठीक है, डिफॉर्मेशन है, डिवाइडेड बाय ये ओरिजिनल लेंथ जो है, ठीक है। इस लेंथ के परपेंडिकुलर जो चेंज आया है, डिफॉर्मेशन जो हुई है, इसकी जो रेशियो है दैट विल बी द शेयर स्ट्रेन। इसे हम tan थीटा के टर्म में भी कर सकते हैं, किस तरह, इसे हम tan थीटा क्या होता है, रेशियो होती है tan थीटा परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है दैट इज tan थीटा, और ये वाला थीटा हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज इक्वल tan थीटा। इस तरह भी हम शेयर स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें टेंसाइल टेस्टिंग हो रही है, सो एज के आपको अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग प्रोसेस से ना। देखिए यहाँ पे एक टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है, इसमें जॉग जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक आयरन बार है, आयरन बार का सैंपल इसके अंदर मतलब फिक्स करेंगे। ये जॉग्स हैं, ये जब यहाँ से मूव कर रहे हैं देन ये यहाँ से कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर फिर इसे आयरन बार को इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ बटन दबाने से ये जॉग पूरा ओवरऑल ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। देन इसमें जो ये आयरन बार या सरिया जो है इसके अंदर फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइटली यहाँ पे दोनों ग्रिप्स के अंदर फिक्स कर देंगे, ओके, जिसका हम देख सकते हैं काफ़ी जोर लगा के फिक्स करते हैं, सो एज के स्लिप ना हो जब से स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, वंस अगेन नीचे वाला पार्ट जो फिक्स रहेगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर को मूव करेगा, जैसे ऊपर को मूव कर रहेगा इस पर स्ट्रेस अप्लाई होगी, और ये जो है सरिया जो है आयरन बार जो है डिफॉर्म होगा, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज टेस्टिंग होगी, इसमें कंप्यूटर के थ्रू इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरह आप ये देख भी सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर से फिर टेस्ट रन करेंगे, ठीक है। लेट से टेस्ट रन हो रहा है, तो इसमें ऐसा ऐसे जॉब ऊपर वाला जो है फिर स्टार्ट मूव अपवर्ड्स और उसके स्ट्रेस अप्लाई होना शुरू होंगे। ऐसा आप देख सकते हैं स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं। फिर यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे ऐसे बनना शुरू होगा, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, एज यू कैन सी ये ग्राफ
अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें ज़रा बैक करके तो इससे आप देख रहे हैं यहाँ से ग्राफ वाली लाइन इस तरह आ रही है, फिर इस तरह बेंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन होती है इस ग्राफ में, यहाँ पे स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू इस तरह लीनियर थी। आमतौर पे ये जो पोर्शन होता है ये इलास्टिक रेंज क्या होता है, इसके अंदर यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं। फिर ऐसा ऐसा यहाँ से जब इस तरह कर्व में बेंड आता है तो इट मीन्स कि यहाँ से इलास्टिक से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है। तो ये जो डिफॉर्मेशन होगी ये ना रिकवर नहीं होगी, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आमतौर पे स्टील्स के ग्राफ इस तरह बनते हैं, पहले इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक स्ट्रेन, उसके बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्ट्रेन शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये अब देखें यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये रीस्केल हो रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर या फिजिक्स का एक्विजिशन हो रही है डाटा की, तो इसमें ये डाटा जब आ रहा होता है बाद में से रीस्केल कर लेता है सो एज टू रिप्रेजेंट ऑल द डाटा। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग हो रही है, ये सैंपल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, जब इस स्केल से बाहर जाएगा तो इस कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्केल कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू जो है जाने के बाद कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें ना नेकिंग स्टार्ट हो रही है। नेकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिससे हम देख सकते हैं पहले ये फ्लैट सैंपल तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह डिफॉर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ बने से हम नेकिंग करते हैं। अब ये देखें ये जब सैंपल ब्रेक होता है तो आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है इसमें मतलब रिलीज़ होती है, यहाँ पे काफ़ी जर्क लगता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा साउंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये जो क्या कह सकते हैं लोकलाइज डिफॉर्मेशन की वजह से जो एरिया में डिक्रीज़ हुआ या डायमीटर डिक्रीज़ है, इसे हम नेकिंग कहते हैं। इससे पहले भी जब लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा था। इस केस में लोकलाइज जो डायमीटर डिक्रीज होता है इसे नेकिंग कहते हैं। और ये जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो डाउनफॉल देखा, ये नेकिंग की वजह से आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि इसमें एरिया जो है वो इसमें एरिया काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। आप जैसे देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ना एरिया कम हो रहा है। इस तरह के आमतौर पर फ्रैक्चर्स आते हैं जब टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो आपने कहा इस तरह हम टेंसाइल टेस्टिंग आमतौर पर परफॉर्म करते हैं। इसमें हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब कर्व जो है मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर जब डिक्रीज होना शुरू होती है तब उसमें नेकिंग या लोकलाइज डिफॉर्मेशन होना शुरू होती है। अदरवाइज इससे पहले डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज मोर लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सैंपल। यानी कि सारे सैंपल में यहाँ पे लेट से ग्रिप्स हैं, यहाँ पे ग्रिप्स हैं, तो ये पूरे सैंपल में डिफॉर्मेशन मोर लेस यूनिफॉर्म होगी। जब ग्राफ जो है वो जिस तरह आपने देखा था यहाँ पे ग्राफ जो है वो इस तरह यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू है, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू है। ग्राफ इस तरह जाके जब ये नीचे आना शुरू होता है तो यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि लोकलाइज डिफॉर्मेशन होगी। यहाँ से पहले जितनी ये डिफॉर्मेशन हो रही है, ये देखें यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रही है ये इस तरह, तो यहाँ पे जितनी डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ जितनी भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज यूनिफॉर्म मोर लेस अलोंग द लेंथ। ओके, so next is the like we were discussing the linear elastic properties के linear elastic properties में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस जो है काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। ये आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में काफ़ी कॉमन है, ठीक है, स्टैटिक्स वगैरह में भी। so, क्या होता है इसमें, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, ठीक है, लोडिंग हो रही है मटेरियल की, अनलोडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है, दिस स्लोप इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस भी कहते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं, जब स्ट्रेस यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो इसे ये कंप्रेसिव रीजन है, ये टेंसाइल रीजन है, ठीक है, मोर और लेस इसकी जो स्लोप सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यंग्स मॉडुलस जो है ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकली आपने वैल्यू तो निकाली, यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्लोप होता है एक्चुअली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का। तो उसमें क्या होगा, वाई ओवर एक्स स्ट्रेस की वैल्यू डिवाइड बाय स्ट्रेन की वैल्यू, इससे यंग मॉडुलस आ जाएगा। प्रैक्टिकली ये क्या चीज़ बताएगा, प्रैक्टिकली ये होता है कि इफ अ मटेरियल हैज़ हायर यंग्स मॉडुलस इट मींस इट विल डिफॉर्म लेस अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल दो मटेरियल्स, एक का लेट से यंग मॉडुलस हाई है, लेट से मटेरियल ए है, इसका मॉडुलस 30 गीगापास्कल है, मटेरियल बी है,
इसका यंग मॉडुलस 20 गीगापास्कल है, ठीक है। सो अगर सेम स्ट्रेस लेवल सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, लेट्स से कह लें लेट्स से 10 मेगापास्कल हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है दोनों मटेरियल्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, तो इन दोनों में से किस में कम डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है। सोचें, इन दोनों में ए में कम डिफॉर्मेशन होगी, क्यों? क्योंकि इसका मॉडुलस ज़्यादा है, ठीक है। ये मॉडुलस के जैसा क्वेश्चन लिखी है, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देन स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस सेम है, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है उसमें ज़्यादा स्ट्रेन कम होगी, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लो है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर लेट्स से हम चाह रहे हैं कि एक चीज़ जो है लेट्स से उसका जो डिफॉर्मेशन है उसमें मैक्सिमम 1 मिलीमीटर उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा डिफॉर्मेशन हमें डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। तो फॉर 1 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन किस मटेरियल के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए, ए के लिए या बी के लिए? लेट्स से दोनों ए और बी मटेरियल हैं, इन दोनों को हमने 1 मिलीमीटर तक डिफॉर्म करना है। लेट्स से 1 मीटर का सैंपल है लेंथ का, उसमें सिर्फ 1 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 मिलीमीटर डिफॉर्म करते हैं तो सैंपल ए के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होगा, सैंपल बी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होगा। सो जिसका मॉडुलस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रेस जो है उसके लिए चाहिए होगा फॉर द सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन सेम है, तो जिसका मॉडुलस ज़्यादा होगा उसके लिए स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए होगा। सो फिजिकली आप इस तरह समझें कि जिस चीज़ का मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी डिफॉर्मेशन मुश्किल होगी, ठीक है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा डिफॉर्मेशन के लिए। सो ये है फिजिकल अंडरस्टैंडिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड मटेरियल्स होते हैं आमतौर पर उनका मॉडुलस हाई होता है, और जो वीकली बॉन्डेड मटेरियल होते हैं उनका मॉडुलस कम होता है, क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग विद इन अ मटेरियल। तो जिसमें मॉडुलस यहाँ पे फोर्स में ये हमने इसका क्वेश्चन पहले देखी थी, इसमें जो मटेरियल होंगे जिनकी यहाँ पे कह लें कि ये जो है डिफरेंशियल जो है, जैसे कि आपको पता है स्लोप देता है, जिसका स्लोप हायर होगा इट मीन्स के सेपरेशन जो है उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि स्मॉल सेपरेशन के लिए भी ज़्यादा फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगी। अगर ये स्लोप कम है, ठीक है, तो सेपरेशन के लिए कम फोर्स चाहिए। जितनी सेपरेशन ज़्यादा होगी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा हो रही है तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल मटेरियल की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो इट मीन्स के जितनी लेंथ सेपरेशन इंटरएटॉमिक सेपरेशन ईजी है उतना ही मटेरियल को डिफॉर्म करना ईजी है। जितनी इंटरएटॉमिक सेपरेशन मुश्किल है उतने मटेरियल को डिफॉर्म करना मुश्किल है। सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग ऑफ द मटेरियल। अगर बॉन्डिंग जो है उसमें यहाँ पे ये स्लोप जो है जो इक्विलिब्रियम के पास जो स्लोप है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो स्लोप है, आर नॉट मीन्स इक्विलिब्रियम के ऊपर जो स्लोप है, अगर वो हाई है इट मीन्स के सेपरेशन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए, सो इट मीन्स कि इसका मॉडुलस ज़्यादा होगा। अगर ये आर नॉट के ऊपर सेपरेशन इंटरएटॉमिक सेपरेशन के लिए कम फोर्स चाहिए तो इट मीन्स कि इसका मॉडुलस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसी के एनालॉगस के, जिस तरह मॉडुलस की हमने बात की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूनिएक्सियल स्ट्रेस के केस में यूज़ करते हैं, मोस्टली टेंसाइल केस में हम यूज़ करते हैं, कंप्रेसिव के लिए भी हम कर सकते हैं। टेंसाइल के केस में मोस्टली हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, स्ट्रेन गेज से भी कर सकते हैं या जिस तरह भी ना। इसी तरह हम इलास्टिक जो है शेयर मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे टा जो है ये दैट इज़ द शेयर स्ट्रेस, जो गैमा है ये शेयर स्ट्रेन है, तो इनका आपस में रिलेशन होगा, इसे हम जी से डिनोट करेंगे, इसे हम शेयर मॉडुलस कह देंगे, जिस तरह हम इलास्टिक मॉडुलस की बात कर रहे थे या यंग मॉडुलस की बात कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह हम बल्क मॉडुलस की बात कर सकते हैं कि 3D हमने एक चीज़ को कंप्रेस किया है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस अप्लाई किया, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस जब हम अप्लाई किए हैं तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो इसमें जो बल्क मॉडुलस होगा या 3D मॉडुलस होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब 3D स्ट्रेसेस अप्लाई होंगे तो वो जाहिर सी बात है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे एक बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा,
तो वो नेगेटिव वैल्यू जो है ये इसलिए है ताकि ओवरऑल बल्क मॉडुलस जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखी जा सके, ठीक है। सो एनीवेज ये वही प्रिंसिपल इसमें यूज़ हो रहा है कि फोर्सेस अप्लाई की हैं और ये मॉडुलस जो है फोर्स अप्लाई की हैं तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम जो इन दोनों का जो रिलेशन है उसके जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसका इलास्टिक कांस्टेंट है उसे हम के से डिनोट करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम इस चैप्टर इसमें अंदर टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज से एनालॉगस जो है अंडरस्टैंड की जा सकती हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी हम सम टाइम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह में एक रेशियो, तो इसे पॉइसन रेशियो कहते हैं, ठीक है। पॉइसन रेशियो का हम इस तरह लेटर वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम यू पहले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइसन रेशियो क्या है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेसेस अप्लाई किए हैं एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड लेट से, तो क्या होगा, मटेरियल इस डायरेक्शन में उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, ठीक है। सो लेट्स से लॉन्ग जी एक्सिस स्ट्रेसेस अप्लाई किए हैं तो स्ट्रेन जो होगी लेट्स से जी एक्सिस में पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस में नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस लेट्स से ये हैं, वाई एक्सिस ये हैं, ठीक है। तो इन दोनों एक्सिस में जो है लेट्स से आप कह सकते हैं कि जिस तरह सिलेंडर असूम करें तो डायमीटर जो है सिलेंडर का उसमें उस डायरेक्शन में जो है लेंथ उस डायमीटर जो है सैंपल का डिक्रीज होगा और लेंथ जो है इंक्रीज होगी। यहाँ पे अगर लेट्स से स्क्वायर सैंपल है तो इस डायरेक्शन में जो है लेंथ इंक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे शो किया हुआ इस डायरेक्शन का एक्स एक्सिस कहें तो इस डायरेक्शन में लेंथ कम हो रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों की जो रेशियो जो है इसे पॉइसन रेशियो कहते हैं। इसी तरह इस डायरेक्शन में रेशियो बेशक ले लें, ये दोनों इक्वल होंगे अगर तो मटेरियल आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक जिसे हमने बात की थी मोर और लेस यूनिफॉर्म है और प्रॉपर्टीज जो हैं थ्रू आउट मोर और लेस सिमिलर है या सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी डिफॉर्मेशन उतनी ही होगी या स्ट्रेन उतनी ही होगा जितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो जी एक्सिस के लॉन्ग भी डिफॉर्मेशन दोनों के सिमिलर से सेम ही है, देख रहे हैं। तो ये रेशियो और ये रेशियो कांस्टेंट इक्वल होंगे एक दूसरे के और इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द पॉइसन रेशियो। ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि अगर जी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि स्ट्रेन के जो फार्मूला वो ये है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इस केस में नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल लेंथ कम है, इनिशियल लेंथ ज़्यादा है, तो चेंज इन लेंथ जो होगी वो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो होगी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर जो होगा ये नेगेटिव आ जाएगा। इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट मीन्स कि पॉइसन रेशियो की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये रेशियो नेगेटिव है, ये वाली जो है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए जो है पॉइसन रेशियो के थ्रू हम इलास्टिक मॉडुलस को बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शेयर मॉडुलस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं, ओके। सो ये इक्वेशन है जिसके थ्रू हम पेरिकल रिलेशन है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक मतलब जंक्शन मॉडुलस पता है, पॉइसन रेशियो पता है, तो ये यूनिएक्सियल प्रॉपर्टी इसके थ्रू हम टेंसाइल प्रॉपर्टी के थ्रू हम शेयर मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। इस तरह अगर हम फर्दर डिस्कस करें, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन, इलास्टिक मींस रिकवरेबल डिफॉर्मेशन, ओके। सो लेट्स सी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। यहाँ पे आप जिस तरह टेस्ट में भी देखा था, एक्चुअल टेस्ट में पहले लोडिंग अप्लाई शुरू की, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही होती है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी, यहीं पे यंग मॉडुलस फाइंड होता है। तो इलास्टिक मॉडुलस का ताल्लुक जो है बाउंड की स्ट्रेचिंग के साथ है, लेट्स से बाउंड स्ट्रेच हुए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे एटम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू होते हैं, स्लाइड होते हैं, नई बाउंडिंग बनती है, डिसलोकेशन मूव करती हैं, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे मटेरियल इस तरह बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है इसमें कर्व इधर को बेंड होना शुरू होता है, जिससे आपने प्रैक्टिकल वीडियो में भी देखा है, ठीक है। अगर हम इस जगह पे टेस्ट को एंड कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाली जगह से ये मटेरियल वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है, जो मटेरियल यहाँ से यहाँ पे स्लिप हो गया है, ठीक है, इसे स्लिप कहते हैं। तो जो डिसलोकेशन की मूवमेंट की वजह से एटम यहाँ से यहाँ मूव कर गए हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन जो स्ट्रेचिंग हुई है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई है, ये पोर्शन रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जो ये रिकवरी है दैट इज इलास्टिक रिकवरी, ठीक है।
जैसे मटेरियल का अगर हम यहाँ पे जाके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, ठीक है, समझ आता है। यह प्लास्टिक, यहाँ से यहाँ तक जो होगी डिफॉर्मेशन ये प्लास्टिक होगी परमानेंट, और यहाँ से यहाँ तक जो होगी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे भी। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जहाँ पे नोटिसेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, या आप इससे समझ लें कि यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट है, वो स्ट्रेस पॉइंट है जिससे कम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के ऊपर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, जिससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 0.002 प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काफ़ी कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत स्मॉल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आप इस तरह समझ लें, अगर एक कर्व इस तरह बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगी दैट इज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हो रही है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है। तो जो वैल्यू जहाँ तक इलास्टिक या इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है इससे हम यील्ड स्ट्रेंथ करते हैं। इससे जब फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं होगी, इसका मतलब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। इससे कम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल जो है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ मैकेनिकल जो है डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी हम मटेरियल डिज़ाइन करते हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। क्यों यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो मटेरियल जो है वो अगर यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है स्ट्रेस लेवल अगर यील्ड स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब है वो आमतौर पे यूजेबल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, चेयर का एक समझ लें वन लेग जो है वो उसकी एक यील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि उस स्ट्रेस लेवल तक, अगर लेट से ये यील्ड स्ट्रेंथ है तो इस स्ट्रेंथ लेवल तक लेट से ये यील्ड स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेस लेवल जब तक यहाँ तक रहेगा मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा। लेट से एक आदमी बैठता है उसके ऊपर स्ट्रेस लेवल यहाँ पे चला जाता है, एक ज़्यादा लेट से 1% बैठता है, ज़्यादा वजन वाला आदमी बैठता है तो स्ट्रेस लेवल यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ से नीचे है, लेट से वो उठ जाएगा दोबारा तो जो है ये डिफॉर्मेशन थोड़ी सी जो मटेरियल में होगी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस लेवल जब 0 पे आएगा तो मटेरियल में कोई डिफॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, विच मीन्स कि जो लेग है उसकी, जो भी कुर्सी है उसकी कोई भी जो लेग है वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुई होगी, ठीक है, ठीक रहेगी। लेकिन किसी वजह से लेट से उसके ऊपर 2 आदमी बैठ जाते हैं या स्ट्रेस लेवल किसी वजह से बढ़ जाता है, इस मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो जो लेग है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, लेट से मुड़ जाएगी, ठीक है, या नीचे को दब जाएगी, कुछ भी हो जाएगा उसे ना। तो वो जो डिफॉर्मेशन होगी वो फिर रिकवर नहीं होगी, वो इसका मतलब वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर किसी भी जैसे कुर्सी वगैरह उसकी टांग मुड़ जाती है इसका मतलब वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी लेग जो है डिफॉर्म हो जाती है, आउट ऑफ शेप आ जाती है तो वो यूजेबल नहीं रहती। तो इट मीन्स कि यील्ड स्ट्रेंथ से जब स्ट्रेस लेवल ऊपर चले जाता है तो मोस्ट केसेस में वो हमें मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर वो यूजेबल नहीं रहते। इसलिए हम असूम करते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं कि मटेरियल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है तो हम यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ले रहे होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जाएगा तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वो आमतौर पर यूजेबल नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ जो मटेरियल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम इसे फर्दर कंपेयर करें तो हम आमतौर पर मेटल्स एंड अलॉयज की बात करें तो बहुत बड़ी रेंज है इसमें, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है आमतौर पे टिन के, एल्यूमिनियम की भी ठीक है, स्टील्स वगैरह की देखिए काफ़ी हाई है यील्ड स्ट्रेंथ, मेगा पास्कल में कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स की डिफरेंट होती है। टिन की काफ़ी कम है, टिन जो है फॉर एग्जांपल प्योर है, या जिस तरह हम बात करें ये जो है टिन और लेड का आमतौर पे टिन और स्टेनलेस का अलॉय होता है, जो ये जो वेल्डिंग के लिए वायर होती है, वेल्डिंग के लिए नहीं, जो आमतौर पे सोल्डरिंग वायर जो है वो टिन और लेड का अलॉय होता है, ये सेटिन बेस्ड अलॉय होते हैं, ठीक है। तो वो लो मेल्टिंग भी है और आमतौर पर आपने देखा है वो इजीली आप थोड़े से भी फोर्स अप्लाई करें वो मुड़ जाते हैं ना, तो इट मीन्स के वो परमानेंटली डिफॉर्म इजीली हो जाते हैं, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है। बाकी आमतौर पे एल्यूमिनियम की या स्टील वर्क की यील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है। पॉलीमर्स की अगर कंपेयर करें तो वो ऑफ कोर्स कम होगी, ठीक है। तो बाकियों के ज़रा डिफ़िकल्ट है यील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना, लेकिन स्टिल एम्पेरिकल रिलेशन एग्जिस्ट और हम इसकी टेस्टिंग करते हैं सो एज टू मैया के
किस तरह मटेरियल बिहेव करेगा जब उसे किसी मैकेनिकल लोडिंग में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके।